Good morning, students. In the last lecture, we have seen the systems of wind turbine generation. That means there were three important parts. One is foundation and tower, another is nacelle, and third one is the So wind turbine generator has three important parts, three important system. One is foundation and tower, second is nacelle, and third one is rotor system. Tower foundation provide these are the structural elements which carries all the forces and movements to the ground. Actually, tower is necessary for placing rotor system at a particular height. If we do not provide tower, in that case, uh, the wind rotor blades will be mounted at not at very high distance, and we will not be able to get maximum power because power is dependent upon the velocity of the wind, and velocity of the wind increases with the increasing height of the tower. Okay. Nacelle contains all the component that sit on it on top of the tower except rotor system. ठीक है ना? We have discussed it yesterday also. It includes main shaft, gearbox, and generator, brakes, bearings, nacelle frame, yaw mechanism. Similarly, auxiliary crane, hydraulic system, and cooling system also. Rotor system includes blades that capture energy and a rotor hub that connects the blades to the shaft. ठीक है ना? So these are the three important parts or systems of wind turbine generator. Foundation is not visible in this image. You can see the tower only. And front portion which is visible is rotor or rotor system, which it includes rotor blades as well as the hub. Okay. And behind this, except rotor system, all parts which are mounted on top of this wind tower is known as nacelle. Okay. In the rotor system, there are two important parts, blades and rotor hub. Blades are necessary for generation of the energy or conversion of wind energy into electricity. Rotor hub is connected to the main shaft, and in large utility scale turbine, the rotor hub has mechanism to pitch the blade. Okay, that is rotate along the longitudinal axis of the blade. The rotor blade has four important parts: root, which is this portion, then core, upwind and downwind aerodynamic cell. This is necessary. This is having aerodynamic profile. That's why it has written that it is aerodynamic cell. And the shape is such that the lift is created at very small velocity of the wind. And some sensors are also mounted into the blade also. Okay. Then rotor hub. This portion is known as rotor hub. Blades are radially bolted. Okay. You can see this figure. You can see the bolts which are arranged in circular on this rotor hub, and through these blades we can mount the rotor blade. Okay. On the axial end, the rotor hub is connected to the drive train on this side. The hub is made of high quality cast iron. It transfers load from the blades to the nacelle frame and to the drive train. This rotor hub is made up of cast iron, whereas the blades are made up of some fiberglass, epoxy resins, and some uh, low weight material. Okay. It transfers load from the blades to the nacelle frame and to the drivetrain. The manner of transferring loads from the hub to rest of the component in the nacelle depends on the turbine configuration, that is direct type,
direct drive or with gearbox. In direct drive, gearbox is not installed, but that is not very much useful. That's why most of the turbines which are used nowadays are having gearbox also. Okay. Then pitch control. Pitch control gearboxes serve the essential purpose of setting pitch at the best angle to the bend to turn the rotor. ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा कभी इसको अपन यदि शिफ्ट करना चाहें, इसकी पोजीशन चेंज करना चाहें, तो उसके लिए यहाँ पे पिच कंट्रोल होता है, जिसके थ्रू बिंड की जो रोटर ब्लेड्स होती हैं उनकी डायरेक्शन अपन चेंज करते हैं, एंड सो दे आर केप्ट अक्रॉस द डायरेक्शन विच बिंड इज ब्लोइंग. उसके लिए यहाँ पे पिच कंट्रोल का रखा जाता है, विच इज प्रोवाइडेड इन द रोटर सिस्टम इटसेल्फ. यॉइंग के लिए यहाँ पे यॉइंग मैकेनिज्म होता है, विच इज इंस्टॉल्ड इनटू द नेसल, वेयर एज पिच कंट्रोल इज इंस्टॉल्ड इनटू द रोटर सिस्टम. ओके, तो रोटर सिस्टम के कितने पार्ट हो गए? देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस इज नोन एज ब्लेड, देन हब, एंड देन द पिच कंट्रोल मैकेनिज्म, पिच कंट्रोल ड्राइव. देन कम्स नेशल. अब अपन ने ये जो फिगर देखा हुआ है, ये अपन इसको कंसिडर करें तो दिस पोर्शन इज नोन एज रोटर हब, ठीक है ना, और इसकी बियॉन्ड ये जो सारा लगा हुआ होता है, दिस इज नोन एज नेशल. तो नेशल क्या है? इसमें अंदर के मैकेनिज्म यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे अंदर के पार्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है. और ये क्या यहाँ पे जो दिख रहा है, दिस इज द टावर, टॉप पोर्शन ऑफ द टावर. यू कैन सी द लैडर ऑल्सो, सो देन person can move to the top of this tower up to the nacelle in order to maintain or correct the devices. Okay. The nacelle is a housing for the gearbox, generator connecting the tower and rotor. Okay. Sensor detect the wind speed and direction, and motor turns the nacelle. Okay. Other components inside the nacelle are brake, nacelle frame, hydraulic system for brakes and lubrication, and cooling system. This we have seen in the previous slides also. If you consider this figure, ठीक है ना, a wind turbine, but horizontal axis wind turbine has various parts, ठीक है. Initially it is foundation, ठीक है. Then this is the tower. You can see the connection to the electric grid. Then there is access ladder which is provided from bottom to the top of the this tower. Then you can see wind orientation control, yaw mechanism. Okay, yaw mechanism is installed into the nacelle itself. And nacelle generator, which is housed inside the nacelle. Anemometer, it is mounted on top of the nacelle. It records the velocity of the wind and direction in which it is flowing. And electrical or mechanical brake, which is housed inside this generator before this. You can see in the nacelle part. And gearbox, rotor blade, it is the part of the rotor system, rotor blade, blade pitch control, and rotor hub. So this portion is known as rotor system. This portion is known as nacelle. This is tower, and in the bottom, in the ground, there is foundation. Okay. ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट हो तो बेटा आप पूछ सकते हो. यहाँ पे अपने आप को अनम्यूट करके आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यदि कोई डाउट हो तो, अदरवाइज अपन आगे चलते हैं. नो क्वेश्चन? In conventional wind turbines, the blades spin a shaft that is connected through a gearbox to the generator. What is written? The blades spin a shaft that is connected through a gearbox. Okay. So in this cross section, you can see these are the blades. Through hub, there is a shaft. Okay. So shaft is connected through a gearbox to the generator. Here is the gear train, and यहाँ पे generator आ जाता है. ठीक है. The gearbox converts the turning speed of the blades to 15 to 20 rotations per minute for a large 1 megawatt turbine into the faster 1800 revolution per minute that the generator needs to generate electricity. ठीक है ना. तो ये gear train यहाँ पे इसलिए प्रोवाइड की गई है कि whatever is the rotation or RPM of this shaft which is connected to the rotor system or blade, ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया है, gear train लगाई है. Here you can see the larger diameter wheel and it is connected to a smaller diameter gear train. Obviously जो नीचे का होगा ट्रेन होगा जो ड्रिवन है इस केस में, उस केस में इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी. ये जरूरी होता है किसके लिए? क्योंकि उतने आरपीएम पे हमको
जो जनरेटर सिस्टम उसके साथ रोटेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाती है। ये गियर बॉक्स इज टिपिकली यूज्ड इन अ विंड टरबाइन टू इंक्रीज रोटेशनल स्पीड फ्रॉम अ लो स्पीड रोटर टू हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ये यहाँ पे विंड के रोटेशन की वजह से इस शाफ्ट की, रोटर सिस्टम के शाफ्ट की जो स्पीड है उसको अपन इंक्रीज कर रहे हैं। इसके लिए जनरेटर शाफ्ट की स्पीड को, भाई इसकी पावर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम ट्रांसमिटिंग द पावर वी आर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द जनरेटर शाफ्ट आल्सो so that sufficient amount of electricity is generated. ठीक है, a common ratio is about 90:1. You can see that we are going to increase the speed by 90 times. 90:1 is the gear ratio with a rate 16.5 rpm input from the rotor to 1500 rpm output for the generator. ठीक है, 1500 some electricity 1800. ठीक है, तो इसमें ये चेंज कर सकते हैं, और इस स्पीड पे आके ही क्या होता है, जो जनरेटर है वो स्पीड इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट कर पाता है। The electrical generator is mounted inside the nacelle at the top of a tower behind the hub of the turbine rotor. ठीक है, जनरेटर कहाँ पे माउंट होता है? Inside the nacelle at the top of tower behind the hub of the turbine rotor. बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। देखो, here you can see, if you are able to see, this is tower. On top of the tower, this portion is known as nacelle and this portion is known as rotor system. तो टावर के ऊपर टॉप में, नेशल के अंदर ही ये सारी चीजें हाउस्ड होती हैं। ठीक है, यूजुअली द रोटेशनल स्पीड ऑफ द विंड टरबाइन इज स्लोअर देन द इक्विवेलेंट रोटेशनल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, वो अपन पहले से देख चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ पे गियर सिस्टम इन्वॉल्व कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो रोटर सिस्टम का आरपीएम है कम होता है, बट व्हेन द पावर ट्रांसमिटेड टू द जनरेटर, ठीक है, उसके इसमें आरपीएम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं बिकॉज ऑफ द गियर बॉक्स अवेलेबल। ठीक है, टिपिकल रोटेशन स्पीड फॉर विंड टरबाइन आर 520 आरपीएम, 5 to 20 आरपीएम, कुछ भी हो सकता है, 5 आरपीएम से लेके 20 आरपीएम। while a directly connected machine will have an electrical speed between 750 to 3600 rpm. अपन ने अभी तक क्या देखा था, 1800, 1500, but it can vary depending upon the speed of the rotor system, which is getting energy directly from the wind. And since we have incorporated gearbox inside the nacelle, and due to that nacelle, the rpm of the rotor is going to be increased, and this is the rpm of the rotor and this is the rpm of the generator. Therefore, a gearbox is inserted between the rotor and the generator. This also reduces the generation cost and weight. Okay, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो अपने आप को म्यूट करके। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलते हैं। नो सर। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ठीक है, ऊपर की कुछ फिगर में हमने क्या देखा था, पिच कंट्रोल मैकेनिज्म देखा था, ये याइंग है। याw इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द नेशल अराउंड इट्स वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, याw इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द नेशल अराउंड इट्स वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस ये है, ठीक है, नेशल का, इसकी अराउंड ये इस डायरेक्शन में आके कुछ मूव हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, याइंग बोलते हैं। Efficient yaw control is essential to ensure that wind turbines always face directly into the wind. देखो क्या होता है, हमने जिस डायरेक्शन में इन रोटर को इंस्टॉल कर दिया, अभी जरूरी नहीं है कि हमारी जो विंड ब्लो होगी, हमें एक्सपेक्ट तो करते हैं कि विंड इसी डायरेक्शन में इसके अक्रॉस आएगी, बट ड्यू टू वेरियस नेचुरल फिनोमेना जो विंड होती है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है और स्पीड भी चेंज होती रहती है। ठीक है, विंड डज नॉट ब्लो एट कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट द ईयर। विंड की वेलोसिटी कंटिन्यूसली इन अ डे इन पर्टिकुलर टाइम वहां पे चेंज होती रहती है। सिमिलरली देयर इज चेंज इन डायरेक्शन आल्सो। तो लिटिल बिट डायरेक्शन में जो चेंज होता है, तो उस चेंज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, क्योंकि ये जरूरी होता है कि ये जो ब्लेड्स हों, ब्लेड्स विंड जिस डायरेक्शन में ब्लो हो रही है उसके अक्रॉस ही इनको होना चाहिए, तब जाके ये रोटेट होंगी ढंग से और ज़्यादा से ज़्यादा आरपीएम डेवलप करेंगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, अब कई बार यदि इसकी डायरेक्शन चेंज होती है विंड की, सामने से ना कि कुछ एंगल पे लेफ्ट से या राइट से आ रही है, तो हम क्या करते हैं, इस याव कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू इसको हम पोजीशन को चेंज कर लेते हैं।
तो नेसल के साथ साथ उससे अटैच्ड जो हब और रोटर सिस्टम होता है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है एंड दे आर नाउ फेसिंग द विंड डायरेक्टली मूविंग अक्रॉस इट। तो उस केस में जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो हो रही थी उसके अक्रॉस अपन इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, यह मैकेनिज्म। Modern large wind turbines are typically actively controlled to face the wind direction measured by a wind vane situated on the back of the nacelle। अपन ने कोई देखा था यहाँ पे कुछ फिगर, इसके पीछे कुछ कुछ लगी होती हैं, एनोमीटर लगा होता है, कुछ और चीजें रहती हैं, तो वो दिखाता रहता है कि विंड किस डायरेक्शन में बिलो हो रही है, उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली यो मैकेनिज्म जो इंस्टॉल रहता है इसकी पोजीशन चेंज कर देता है, जिससे कि विंड का रोटर सिस्टम, विंड टरबाइन का रोटर सिस्टम विंड के अक्रॉस आ जाता है। ठीक है, तो ये हल्का सा इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, नेशनल रोटर सिस्टम। ठीक है ना, टावर। अब यहाँ पे यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन? किसी को भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, बड़ा मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बहुत रेयर चीज है कि आपको कोई डाउट ही नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, रोल नंबर 72 पराग, अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। सब कुछ समझ में आ गया? यस सर। नेशनल के अंदर क्या क्या चीजें हाउस होती हैं? सर साफ्ट होती है, फर्स्ट रोटेटिंग सिस्टम, हम्म थर्ड जनरेटर रहता है एंड गियर बॉक्स रहता है। गियर बॉक्स इसके बीच में लगा होता है। सर ये जो साफ्ट के एंड में और जो जनरेटर का सामने का जो पार्ट रहता है उसके बीच में लगा रहता है। मतलब जनरेटर और रोटर सिस्टम के बीच में अपन गियर बॉक्स इंस्टॉल करते हैं, जिससे कि जो रोटर सिस्टम का आरपीएम है जो काफ़ी कम होता है उसके आरपीएम को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जनरेटर के शाफ्ट को एक पर्टिकुलर आरपीएम पर रोटेट होना जरूरी होता है। कहीं पे लिखा है 1800 आरपीएम, कहीं पे लिखा है 1500 आरपीएम, फिर उन्होंने एक रेंज दी है, इट कैन रोटेट अप फ्रॉम 750 आरपीएम टू 3600 आरपीएम। तो कुछ भी हो सकता है, 1000, 2000, 1500, ये अपन फिक्स नहीं रख सकते उसको वहाँ पे। So for increasing the rotation of the generator shaft, we interpose gearbox between rotor system and the generator। ठीक है, चलो ठीक है। विशाल गोयल, अनम्यूट यस करो सर। अपने आप को। समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ ब्लेड का प्रोफाइल क्या होता है और क्यों होता है? सर, ब्लेड अपन इसलिए लगाते हैं सर, वो विंड आने नहीं, से वो। प्रोफाइल क्या होता है, उसकी शेप क्या होती है ब्लेड की? देखो, एक लिखा अपन ने अप विंड प्रोफाइल और दूसरा लिखा डाउन विंड प्रोफाइल। तो आप लोग सब लोग ध्यान से सुनो, जो प्रोफाइल होता है वो हमेशा एरोडायनेमिक लिया जाता है, जिससे कि कम वेलोसिटी पे सफिशिएंट ड्रैग, वहां पे जो फोर्स है वो लिफ्ट जिसको बोलते हैं जनरेट हो सके। और उसकी वजह से क्या होता है, विंड की जो बेन्स रहती हैं, लिफ्ट इस केस में क्या काम करता है, वो विंड की ब्लेड को, विंड टरबाइन की ब्लेड को रोटेट कराने का काम करता है। तो इसका जो प्रोफाइल है, वेदर इट इज अपविंड साइड और डाउनविंड साइड, ये दोनों एरोडायनेमिक ही होता है। ठीक है, ओके सर। और कोई क्वेश्चन? अभिषेक मिश्रा, रोल नंबर 5। अभिषेक मिश्रा, रोल नंबर 5, अनम्यूट करो अपने आप को। देखो सो गया है बिल्कुल से, यही बोलते हैं आप लोगों ने, क्या माइक बंद किया अपना, वीडियो बंद है, पता नहीं भगवान जाने क्या कर रहे हैं। सर इसीलिए सर ऑफलाइन लगवा दो सर कॉलेज। ऑफलाइन चल रही है ना, आप लोग आ जाओ, हम मना थोड़ी करते हैं। अच्छा सर। ऑफलाइन में कितने 10-15 लड़के आते थे अकेले, ये लड़के अभी भी सर चले आ कुछ रहे हैं। सर अभी आ रहे हैं सर वो लोग? ये अभी आ रहे हैं कुछ नहीं लड़के। आ रहे भैया, आप लोग नहीं आ रहे सर थे कुछ इसीलिए लड़के बंद बोल कर रहे हैं कि दिया। बस नहीं। चलो चलो ठीक है, बंद करो, पर्सनल टॉक बंद, नो टॉक। मैं तो ये पूछ रहा ओके हूँ सर। कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, यस सर। तो आज की क्लास बेटा मैं यहीं पे बंद कर रहा हूँ ये।
ठीक है, कोई डाउट नहीं हो तो आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दीजिए अपनी चैट बॉक्स में। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको बंद करता हूँ आज की क्लास को। यस सर।